Right, beta. Now keratoconus. Keratoconus, if I tell you in easy words, simply it is the thinning of the corneal stroma and leading to the forward bulging of the cornea. It's really easy. So if there is the thinning of the cornea, and then in this thin cornea it bulges out forward, said to be the keratoconus. The etiology can be primary or secondary. Primary etiology, mostly it is idiopathic. Don't know why the cornea has become thin and why it is forward, it is bulging forward. Or it may be due to the autosomal dominant inheritance, or it may be secondary to some other diseases, some ocular diseases, systemic diseases, ocular diseases like congenital ocular anomalies like aniridia, retinitis pigmentosa. Maybe in allergic conjunctivitis you come to see the keratoconus, and also in systemic disorders like Down syndrome. It's a chromosomal abnormality, right? Atopic dermatitis is a cutaneous disorder, skin disorder. Marfan syndrome, osteogenesis imperfecta, and the Ehlers-Danlos syndrome, they are the connective tissue disorders, right? So these are the secondary causes behind the keratoconus. That is the thinning of the cornea and its forward bulging, right? Okay. The pathogenesis behind this condition is beta. What happens is actually due to whatever reason, it is primary reason or secondary reason, secondary ocular, systemic, whatever it is, what happens is there is a defective synthesis of mucopolysaccharides in the collagen tissue. Defective synthesis of these two, which result into the fragmentation of the basement membrane of the epithelium, Bowman's membrane. ये सारी जो लेयर्स होती हैं वो क्या होती हैं बेटा, इनकी फ्रेगमेंटेशन हो जाती है, ठीक है. And what happens? Bowman's membrane and the degeneration of the stromal collagen fibers, which lead to the thinning and forward bulging of the cornea. And अब कॉर्निया बाहर बल्ज आउट कर जाती है तो फिर इससे डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, या तो मायोपिया या फिर एस्टिग्मेटिज्म वगैरह. आई होप यू अंडरस्टैंड बेटा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. Whatever causes, if the cause is primary, if the cause is secondary, doesn't matter. What happens in the end? What happens in the end? म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स और जो कोलेजन है ना, उसके साथ क्या होता है? म्यूकोपॉलीसेकेराइड और कोलेजन, इसकी डिफेक्टिव सिंथेसिस होती है. इसकी क्या होती है? डिफेक्टिव सिंथेसिस होती है. अब मेन चीज़ बेटा आपकी जो कोलेजन और म्यूकोपॉलीसेकेराइड है, यही डिफेक्टिव सिंथेसिस होगी. तो इससे क्या होगा, जो आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो बॉमेंस लेयर है, जो स्ट्रोमा है आपके कॉर्निया की, वो सारी की सारी फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी उसकी, वो टूट जाएगी, जड़ गिर जाएगी और आपकी कॉर्निया काफ़ी थिन हो जाएगी, जिसकी वजह से वो फॉरवर्ड बल्ज कर जाएगी. और उसकी दो बड़ी कॉम्प्लिकेशंस, या मायोपिया एंड astigmatism, right beta? Okay. The patient with the keratoconus comes to you with the clinical features of, mostly the onset is at the time of the puberty and both eyes are affected. The symptoms which patient comes with are the painless progressive deterioration of the vision for near and distance both, ठीक है. विजन अफेक्ट होता है केराटोकोनस की वजह से, थिन कॉर्निया यानी उसकी फॉरवर्ड बल्जिंग की वजह से. इनिशियल प्रेजेंटेशन इज अ सडन विजुअल लॉस ड्यू टू द कॉर्नियल हाइड्रॉप्स. व्हाट इज हाइड्रॉप्स? हाइड्रॉप्स द करेक्शन ऑफ द वाटर इन द कॉर्नियल स्ट्रोमा ड्यू टू ब्रेक इन द डेस्किमेंट मेम्ब्रेन. अब यस आपने कहा होगा, ठीक है, कि the question that must be coming into your that must be coming into your mind is why there is vision loss. Okay, this is the normal cornea, okay, but now it has become very much thin and forward bulging हो गई है. This is the cornea in case of keratoconus, right? If I'm not wrong. So why vision loss? As I told you, what happens in case of the keratoconus is that all the layers of the cornea, they are fragmented, the descemet membrane and the stroma. So what happens is actually when there are tears in the descemet membrane, the fluid enters into the stroma
and due to the accumulation of the fluid in the stroma, there is the corneal edema, which does not allow the light waves to come, pass across, and this is why there is, you know loss of the vision, decreased vision. Why? You understand now? Because there is something problematic with the Descemet membrane. There is fragmentation of the Descemet membrane, and due to fragmentation of the Descemet membrane, the water goes in, some fluid goes in, and there is the edema, and patient cannot really see. And also few more symptoms, the photophobia and monocular diplopia, एक आंख का diplopia यानी कि एक आंख में डबल विजन का फील होना, ठीक है. Okay, then comes some signs. Visual acuity is reduced due to myopia and astigmatism. As I told you, but the two important complications of keratoconus are the myopia and astigmatism. Due to these two, patient cannot, have the perfect visual acuity, right? And on distant direct ophthalmoscopy, it will show the oil droplet reflex. And the important thing regarding this keratoconus is the diagnostic sign is the presence of the Munson sign. Munson sign is the bulging of the lower eyelid when the patient looks down. नॉर्मली क्या होता है, जब आप अपनी आंखें नीचे करके आई बॉल दोनों नीचे की तरफ देखने की कोशिश करते हो, आपकी जो आई लिड है वह ऐसे नीचे बल्ज नहीं करती. लेकिन अगर पेशेंट केराटोकोनस का होगा तो उसकी आईज जो है, आई लिड्स जो हैं वो ऐसे नीचे बल्ज करेंगी, क्योंकि आई बॉल बाहर निकला हुआ है, जिसकी वजह से आई लिड पर प्रेशर आ रहा है वेट की वजह से. तो इसको हम मुनसन साइंस कहते हैं, ठीक है. ओके, रेटिनोस्कोपी पे इर्रेगुलर सीजर रिफ्लेक्स विल बी देयर, and we'll better understand these reflexes in the retina. But for now you understand that there are मोटी जो बातें, जैसे कि ऑप्थेल्मोस्कोपी पे ऑयल ड्रॉपलेट रिफ्लेक्स, रेटिनोस्कोपी पे इर्रेगुलर सीजर रिफ्लेक्स, मुनसन साइन, ठीक है. स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन पे यू विल सी फॉरवर्ड बल्जिंग एंड थिनिंग ऑफ द कॉर्निया. दिस इज एक्चुअली द प्रॉब्लम. वॉगट्स लाइंस, ये क्या होते हैं? दिस इज वर्टिकल deep stromal stress lines which disappear with the external pressure on the globe. ये वॉगट्स लाइन एक्चुअली आपको स्लिट लैम्प पे दिख जाती हैं. अगर ये आपकी कॉर्निया की एपिथेलियम में बोमेंस लेयर है और ये नीचे स्ट्रोमा है ना, तो स्ट्रोमा के अंदर ये स्ट्रेस लाइंस होती हैं. डीप स्ट्रोमा के अंदर ये लाइंस होती हैं, स्ट्रेस लाइंस, और अगर बाहर से आप प्रेशर देते हो ना ग्लोब को, ये डिसअपियर हो जाती हैं, ठीक है. दीज आर आल्सो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द keratoconus. And the corneal nerves, they become prominent and visible on slit lamp examination. This is also a very important feature. So I hope I'm not actually making it more complicated. Symptoms are clear, beta. Symptoms are clear. This condition is painless. Cornea is thin, bulging forward. It is painless. There is, I should say, visual loss. Why visual loss? Due to corneal hydrops. What is corneal hydrops? Accumulation of fluid in the corneal stroma. क्योंकि पीछे डेस्केमेट मेम्ब्रेन खराब है, उसकी वजह से कॉर्निया में फ्लूइड जमा हो रहा है. फोटोफोबिया, डिप्लोपिया, मोनोक्यूलर डिप्लोपिया. साइंस में मैंने आपको बताया ऑप्थेल्मोस्कोपी पे रिमेंबर दिस रिफ्लेक्स, रेटिनोस्कोपी पे सीजर रिफ्लेक्स, मुनसन साइन, उसके अलावा स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन की फाइंडिंग्स, ठीक है बच्चों. इस तरीके से एक और स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन की फाइंडिंग है, दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ Fischer's ring. Fischer's ring is the deposition of iron in the epithelium of the cornea around the base of the cone. And the last thing is the scarring of the cornea if there is a very much advanced stage of the keratoconus. So what are the important findings on the slit lamp examination in case of the keratoconus? एक तो thinning and forward bulging of cornea. Second, स्ट्रोमा के अंदर वॉगट्स लाइन्स मिलती हैं, जो स्ट्रेट लाइन्स होती हैं, वर्टिकल लाइन्स होती हैं, ठीक है. Corneal nerves become very much prominent and visible. The Fischer's ring, which is the deposition of iron in the epithelium of the cornea. And lastly, in advanced cases, there is the corneal scarring. For investigation of the keratoconus, we perform the corneal topography, the most sensitive method for the detection of keratoconus. We can also perform the keratometry, which shows the myopia and irregular astigmatism, जो कि दरअसल होता है keratoconus के अंदर, ठीक है. The treatment option is नंबर 1 चीज़ स्पेक्टेकल्स. क्यों स्पेक्टेकल्स? ताकि जो रिफ्रैक्टिव एरर होता है मायोपिया या फिर एस्टिग्मेटिज्म, उसको करेक्ट करने के लिए, जो कि होता है दरअसल आपके केराटोकोनस के केस में, ठीक है. इसके अलावा कॉन्टैक्ट लेंसेज रियली गुड फॉर एस्टिग्मेटिज्म.
उसके अलावा नंबर 3 पे बेटा इंटेक्ट्स आर द इंट्राकॉर्नियल रिंग सेगमेंट. व्हाट इज दिस? दीज आर द टाइनी प्लास्टिक इंसर्ट्स. दे आर प्लेस्ड इन द मिड पेरिफेरी ऑफ द कॉर्निया. दे हेल्प टू रीशेप द कॉर्निया एंड इम्प्रूव द विजन. समझ आई बात? जो फॉरवर्ड बल्जिंग हम एक्चुअली प्लेस कर देते हैं कॉर्निया के अंदर, और ये जो कॉर्निया का शेप इतना फॉरवर्ड बल्ज हो गया है तो इसको अपने वापस नॉर्मल पोजीशन में लाने की कोशिश करते हैं ये इंटेक्ट्स जो होते हैं. ठीक है. उसके अलावा नंबर 4 पे कोलेजन क्रॉस लिंकिंग. कोलेजन क्रॉस लिंकिंग एक्चुअली इज डन टू स्टॉप द प्रोग्रेशन ऑफ द केराटोकोनस. ठीक है. इंटेक्स एंड कोलेजन क्रॉस लिंकिंग, दे आर रियली गुड. आई मीन टू से द इंटेक्स दे आर प्लेस्ड इन द मिड पेरिफेरी ऑफ द कॉर्निया. ये कॉर्निया की शेप को वापस रीशेप कर देते हैं. इसी तरीके से कोलेजन क्रॉस लिंकिंग से क्या होता है? What happens with the collagen cross linking? It stops the progression of keratoconus. It strengthens the stroma of the cornea by cross-linking the collagen fibers to keep cornea in the original shape. समझ आई बात? कॉर्निया के अंदर कोलेजन फाइबर्स को क्रॉस लिंक करना ताकि उनका वो आपस में जुड़ जाएं कोलेजन फाइबर्स, और कॉर्निया वापस अपनी शेप जो है पकड़ ले जो अपनी पहले जैसी थी, वो फॉरवर्ड बल्जिंग ख़त्म हो जाए. ठीक है. और हम ये कैसे करते हैं? कोलेजन क्रॉस लिंकिंग कैसे इंड्यूस करवाते हैं? इट इज़ परफॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ द एपिथेलियम. पहले एपिथेलियम हटाते हैं कॉर्निया की, एंड इंस्टिलेशन ऑफ द राइबोफ्लाविन ड्रॉप्स. अंदर राइबोफ्लाविन ड्रॉप्स डालते हैं, एंड द एप्लीकेशन ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. अगर आपकी ये फॉरवर्ड बल्जिंग हो रही है कॉर्निया की, तो आप क्या करते हो? इसकी पहले एपिथेलियम हटाते हो, फिर नीचे स्ट्रोमा में आप राइबोफ्लाविन डालते हो, और साथ में आप अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस देते हो. तो उससे कोलेजन क्रॉस लिंकिंग इनिशिएट हो जाती है. जब कोलेजन फाइबर्स आपस में क्रॉस लिंक करते हैं तो कॉर्निया की शेप वापस से रीस्टोर हो जाती है. ठीक है. और फॉरवर्ड बल्जिंग ख़त्म हो जाती है. इसके अलावा नंबर 5, इट्स अ डीप एंटीरियर लेमिलर केराटोप्लास्टी इज इफेक्टिव इन पेशेंट्स हु आर इनटॉलरेंट टू कॉन्टैक्ट लेंसेज. ठीक है. केराटोप्लास्टी में क्या करते हैं हम? एक्चुअली कॉर्निया का नया ग्राफ्ट लगाते हैं. ये जो बल्जिंग पोर्शन है इसको निकालते हैं, दूसरा कॉर्नियल ग्राफ्ट लगा देते हैं. इसके अलावा this is the anterior lamellar keratoplasty. It's not the full thickness keratoplasty. A part, इसमें क्या करते हैं? पार्ट ऑफ कॉर्निया हम रिप्लेस करते हैं. बट इन केस ऑफ केराटोप्लास्टी, द फुल थिकनेस केराटोप्लास्टी जो होती है उसमें हम क्या करते हैं? पूरा हम कॉर्निया जो है रिमूव करके कॉर्नियल ग्राफ्ट लगा देते हैं कंप्लीट. और ये इंडिकेटेड कब होती है? व्हेन देयर इज द सिग्निफिकेंट कॉर्नियल स्कैरिंग. ये पूरा हिस्सा देखो ना, केराटोकोनस हुआ, फॉरवर्ड बल्जिंग हुई, और पूरा कॉर्निया स्कैरिंग हो गई है, तो हम पूरा कॉर्निया रिमूव करके इसका ग्राफ्ट लगा देते हैं. ठीक है बच्चों. और जो हाइड्रॉप्स है इसको कैसे ट्रीट करते हैं? जो स्ट्रोमा में फ्लूइड जमा हो गया जिसकी वजह से विजन लॉस हो रहा था, उसके लिए हम हाइपरट्रॉनिक सलाइन यूज़ करते हैं जो कि पानी को सक कर लेता है, निकाल देता है. एंड पैचिंग और बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करते हैं, इससे पानी ड्रेन हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, निकल जाता है. लास्टली द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द केराटोकोनस इंक्लूड द, एक तो एक्यूट कॉर्नियल हाइड्रॉप्स बिल्कुल, एंड द स्कैरिंग ऑफ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कॉर्निया विच अकर्स इन द एट वेरी मच एडवांस केसेस. acute corneal hydrops is very painful condition. एक्चुअली क्या होता है? ये ऊपर एपिथेलियम होती है, ये बॉमेंस लेयर, ये स्ट्रोमा है, नीचे डेस्किमेंट मेम्ब्रेन. ये बेटा ये एंडोथेलियम और डेस्किमेंट मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए, और ये रप्चर होने से फ्लूइड अंदर चला जाए और स्ट्रोमा में जमा हो जाए, तो अब यहाँ पे देखें दो चीज़ें हो रही हैं. एक तो डेस्किमेंट मेम्ब्रेन रप्चर हो रही है, फ्लूइड अंदर आ रहा है, और इसके फ्लूइड के अंदर आने से, यहाँ जमा होने से विजन भी चला जाएगा. सो दिस इज सेड टू बी द एक्यूट कॉर्नियल हाइड्रॉप्स. पेनफुल विजुअल लॉस ड्यू टू रप्चर ऑफ द डेस्किमेंट मेम्ब्रेन, एंड नंबर 3 फ्लूइड्स की एंट्री इनटू द स्ट्रोमा. So these two are the acute corneal hydrops and the scarring of the central cornea are the complications of, right beta, these two are the complications of the keratoconus. We'll now be talking about another type of the keratitis, that is the filamentary keratitis.